हम 110 क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पावर क्वालिटी एंड मिटिगेशन टेक्निक्स का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। If del is the load angle of the cable, what is its power factor is? Option A sin del, B cos del, C power factor is impedance of del, D power factor depend upon del, but it is not as A and B. इसका आंसर है A sin del। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट of voltage at point of fault is 0 when it is A 3-phase fault, B LL fault, C LLG fault, D LG fault। तो इसका आंसर जो है A phase fault। क्वेश्चन नंबर 123 टेक आउट the correct statement. The negative and zero sequence voltage are maximum at fault point and decrease toward the neutrals. B. The negative and zero sequence voltage are minimum at fault point and increase toward the neutral. C है the negative sequence is maximum and zero sequence is minimum at fault point and decrease and increase respectively toward the neutral. D. None of the above। तो इसका जो आंसर है वो A है। Negative and zero sequence voltage are maximum at fault point and decrease toward neutral। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम 126। सो 126 में बोल रहा है इन ऑर्डर ऑफ द लाइटनिंग डिस्चार्ज करंट इज। लाइटनिंग का जो करंट है वो कितने एम्पियर में डिस्चार्ज होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 10,000 एम्पियर, दूसरा 100 एम्पियर, सी दिया है 1 एम्पियर और डी दिया है 1 माइक्रो एम्पियर। तो ये बहुत लार्ज अमाउंट का होता है। तो इसका आंसर जो है वो है ए 10,000 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट इन अ ट्रांसफार्मर इज रिच इन। सो ए बोला है थर्ड हार्मोनिक, बी बोला है फिफ्थ हार्मोनिक, सी बोला है सेवेंथ हार्मोनिक एंड डी बोला है सेकेंड हार्मोनिक। तो इसका जो आंसर है वो है डी सेकेंड हार्मोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 158। द इनरश करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर एट नो लोड मैक्सिमम इफ सप्लाई वोल्टेज इज स्विच ऑन। नो लोड कंडीशन पे मैक्सिमम हो इनरश करंट में जब सप्लाई वोल्टेज स्विच ऑन है। तो किस कंडीशन में होगा। तो ए जो है एट जीरो वोल्टेज वैल्यू, बी है एट पीक वैल्यू पीक वोल्टेज वैल्यू, सी है एट V/2 वैल्यू एट 3/2 वोल्टेज वैल्यू। सो जो इसका आंसर है वो है ए जीरो वोल्टेज वैल्यू। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 177। प्योर इंडक्टिव सर्किट टेक पावर रिएक्टिव पावर ले रहा है फ्रॉम द एसी लाइन व्हेन A both applied voltage and current rise, B both applied voltage and current decrease, C applied voltage decrease but current increase। तो इसका आंसर है C applied voltage decrease but current increase। With the help of reactive compensator, it is possible to have A voltage operation only, B unity power factor operation only, C both constant voltage and unity power factor, D either constant voltage or unity power factor। तो इसका आंसर है D either constant voltage or unity power factor। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213। With 100% series compensation of line, A circuit is series resonant at power frequency, B low resistance voltage, C high transient current, D A and C। So इसका आंसर जो है वो है D A and C। क्वेश्चन नंबर 217। The effect of series capacitance compensation is A to decrease the virtual surge impedance, B to decrease the effective length of the line, C to increase the virtual surge impedance loading, D all of the above। तो इसका आंसर है D all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 218। इसमें बोल रहा है फॉर एनी फिक्स डिग्री ऑफ सीरीज कंपनसेशन एडिशनल
effective shunt compensation. A. Increase in the effective length of line. B. Increase of virtual surge impedance of line. C. Decrease the virtual surface impedance loading of line. और डी बोल रहा है बी एंड सी। तो इसका आंसर है ए, इंक्रीज द इफेक्टिव लाइन ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 219 फॉर एनी फिक्स डिग्री ऑफ इंडक्टिव शंट कंपनसेशन additional capacitive compensation is A. Increase the effective length of line. B. Increase virtual surge impedance of line. C. Decrease the virtual surge impedance of line. D. None of the above. तो इसका आंसर है D. None of the above. Next question number 220. With 100% inductive shunt compensation, the voltage profile is flat for। तो इसका आंसर है 100% लोडिंग ऑफ लाइन, बी है 50% लोडिंग ऑफ लाइन, सी 0 लोडिंग ऑफ लाइन, डी है नन ऑफ द अबव। तो आंसर है सी 0 लोडिंग ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 221 ए लॉसलेस लाइन टर्मिनेटेड विद इट्स सर्ज इंपीडेंस हैज A. Flat voltage profile. B. Transmission line angle is greater than the actual length of the line. C. Transmission line angle is less than the actual length. D. A and B. तो इसका जो आंसर है वो है C. Transmission line angle is less than the actual length. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 225. In a pure LC parallel circuit under resonance condition, current drawn from the supply mains is D. A very large. B. B under root LC. C. Vy under root LC. D 0। तो इसका जो आंसर है वो है D 0। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 239 पर। ए थायरिस्टर टाइप लाइटनिंग अरेस्टर A block the surge voltage appearing in the line. B. Absorb the surge voltage appearing in line. C. Offer a low resistance path to the surge appearing in the line. D. Return the surge back to the source. So, इसका जो आंसर है वो है C. Offer a low resistance path to the surge appearing in the line. नेक्स्ट क्वेश्चन है 258। 258 में बोल रहा है ए लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्टेड बिटवीन द लाइन एंड अर्थ इन द पावर सिस्टम। तो ए इसका ऑप्शन है प्रोटेक्ट द टर्मिनल इक्विपमेंट अगेंस्ट द ट्रांसमिशन सर्ज। बी बोल रहा है प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन अगेंस्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। सी बोल रहा है सरफेस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस इन द लाइन। और जो डी है वो बोल रहा है रिफ्लेक्ट द बैक द ट्रैवलिंग वेव अप्रोचिंग इट। तो इसका जो आंसर है वो है ए प्रोटेक्ट द टर्मिनल इक्विपमेंट अगेंस्ट द ट्रैवलिंग सर्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो है 260। 260 में द इंसुलेशन ऑफ द मॉडर्न EHV लाइन इज डिजाइन ऑन द बेस ऑफ ए लाइटनिंग वोल्टेज, बी कोरोना, सी रेडियो इंटरफेरेंस, डी दिया है स्विचिंग वोल्टेज। तो इसका आंसर डी है स्विचिंग वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन the most efficient torque producing actuating structure for induction type relay is A. shaded pole structure, B. watt hour meter structure, D. C. induction cup structure, D. single induction loop structure। तो आंसर है C. induction cup structure। 264 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है in power station, the cost of generation of the power reduced most efficiently when A. diversity factor alone increase, B. both diversity factor and load factor increase, D. C. load factor alone increase, D. both diversity factor and load factor decrease। तो आंसर है डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड फैक्टर दोनों बढ़ेगा, दैट इज बी बोथ डाइवर्सिटी एंड लोड फैक्टर इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 266 शंट कंपनसेशन इन EHV लाइन इज यूज्ड। हमने पढ़ा था पहले भी कि शंट कंपनसेशन EHV लाइन में वोल्टेज जो होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है और सीरीज होता है स्टेबिलिटी के इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका ऑप्शन में दिया है
A. Improve the stability. B. Reduce the fault. Improve the voltage profile and subtle for synchronous phase modifier. तो इसका आंसर जो है improve the voltage profile, that is C. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 269. Which one of the following statement is true? Steady state stability limit is greater than transient stability limit. B. Steady state stability limit is equal to the transient stability limit. और सी बोल रहा है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इज लेस देन द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट. डी बोल रहा है नो जनरेशन कैन बी मेड रिगार्डेड टू द इक्वालिटी और अदरवाइज ऑफ द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट. तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ग्रेटर देन ट्रांजिएंट लिमिट. मतलब जो इसका मेन आइडिया होता है वो होता है कि स्टेडी स्टेट जो होगा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है उसके बराबर आ सकती है, बढ़ सकती है, उसके बराबर आ सकती है और उससे कम होती है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी. लेकिन जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है वो स्टेडी स्टेबिलिटी तक को